So it's screening test basically. Basically we perform two types of tests apart from seeing and listening to the signs and symptoms of the patient, complaints of the patient, and after doing physical examination, something which is happening inside the body, some biochemical errors happening inside the body which can't be manifested outside, which can't be seen by our naked eyes. So how can we know which type of biochemical or physiological abnormalities are going on inside the body? So what happens is this, basically many biochemical abnormalities can manifest in few limited complaints, signs and symptoms. So this confuses us a lot. So we design some tests to be done on patients' fluids, and among them, the one of the most important fluid is blood, because blood is the conduit, blood is the channel which provides nutrition to each and every cells of the body, as well as it takes out or it collects the excretory products or waste products of the cells as well. So it will be a very good medium to know any abnormality uh, happening inside the body. But since it's a invasive process to withdraw blood from the body, so it's not so invasive, but at least it's invasive as compared to urine collection. So what happens is, I was talking about screening, and another one is diagnostic test. So screening test, and what is the difference between it? So after when you will be in final year or mid prof, you will learn much about diagnostic tests. So to confirm the diagnosis, we do these and these tests. But diagnostic tests are basically like, as you people have done in chemistry labs, confirmatory tests. So diagnostic tests are like confirmatory tests, but screening tests are not confirmatory tests. These are just when we expect something, we speculate something from some patient, and he or she is not manifesting the abnormalities in the form of signs and symptoms. Then we sort of to like we try to sort out whether this patient is having any sub like what should I say, like subliminal value of abnormality, level of abnormalities, or there is chances of getting such errors of metabolism in future. So to detect as early as possible in the suspected group of population or group of individuals, we try to test these individuals on the basis of some tests to know whether this patient is having any abnormality, or is under, or is there any risk factor for developing that abnormality in future. So the primary purpose of a screening test is to detect early disease or any risk factor for the disease in large group of people. Okay, so since we are doing in large group of people, so these type of screening tests should be cost effective also, है ना? These tests should not be costlier, because many of from the group, many of the patients may come out as negative, so that will not be cost effective, है ना? इसलिए क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट में कि हम नॉर्मल पॉपुलेशन को स्क्रीन करते हैं, कि उनको सॉर्ट आउट करते हैं कि उनमें प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, या फिर अर्ली स्टेज में वो डिजीज है या नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो भी टेस्ट लगाएंगे दैट शुड बी cost effective, that should be cheaper.
तो ये हो गई दो इम्पोर्टेंट चीज। उसके बाद है वी आर स्क्रीनिंग यूरिन, ठीक है, यूरिन स्क्रीन करें। व्हाई वी आर चूजिंग यूरिन? एज आई सेड कि ब्लड विड्रॉ करना इज अ इन्वेजिव प्रोसेस, एंड अनदर थिंग इज कि यूरिन कलेक्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड not only urine collection is not problematic, but it's also, we know that urine can also serve as a valuable specimen for detecting any abnormality, because we all know that any metabolite which is not required by the body, usually which is water soluble, all those water soluble waste products, they get excreted out through urine from our body. So urine will suffice the requirement. And then it's for inborn errors of metabolism. So in, I think, in which year, 1986 probably, no, it's 1908. Earlier it was not collectively, these abnormalities were not collectively known as inborn errors of metabolism. But in 1908, sir, there was a scientist or physician by the name of Sir Archibald Garrod, who coined this term, inborn errors of metabolism. Okay. So why we are at all talking about this? So we are talking about this because individually there are a myriad number of metabolic errors which comes inside this group. But so individually each abnormality is incidence is very low. It's like 1 in 1 lakh live birth, 1 in 10 lakhs, 1 in 10,000, like that. But cumulatively, when we combine all the errors of metabolism, then cumulatively inborn errors of metabolism, these are frequent as around 800 live births, at least one child is suffering from inborn errors of metabolism. So the incidence of inborn errors of metabolism is 1 in 800 live births. Okay. So अब inborn errors of metabolism है, तो इसमें we usually expect कि these should manifest from the childhood. So it's true, majority of the diseases manifest in the childhood. Many are lethal, that leads to death in early infancy also, but some are not so lethal, so they progress throughout the lifespan, and some are also there which manifest in adulthood also. So what happens? So how it presents? Okay. So what you will see, the child, usually you will see child presenting apparently normally, apparently healthy looking child. Okay, that child will be presented to the OPD with acute short history of illness. Okay, acute means ki short history hai. Okay, within the child will present with some symptoms, with some complaints of only 2 days, 1 day, 3 days, 4 days, 1 week, like that. The child is having this sort of problems with for the past 1 day, 2 day, 3 day, 1 week only, which is worsening progressively, and the parents complain that this complaint is progressing. It's not like static, and neither it's um, remitting, sort of decreasing in the severity of illness. So they will complain the illness, short history with progressive course. And what are these symptoms? So there is the whole spectrum of symptoms, right from slight symptoms like fever,
to encephalopathy or status epilepticus or coma. Even patients come with coma also. So this is the spectrum. From fever to encephalopathy, patient can present with any form of symptom. ठीक है. And तो अब but इसमें भी तो you can say कि some common symptoms must be there. कुछ common होंगे जो almost सारे में होंगे. So yes, there are common symptoms like acute and recurrent episodes of vomiting. ठीक है, मैंने इसको 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दिया. acute and recurrent, chronic and progressive and organ specific. अगर ऐसे याद होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स होते हैं उसमें recurrent episodes of acute and recurrent episodes of vomiting, respiratory distress, ataxia, lethargy, seizures. ठीक है, seizures are very important. Hypotonia, hypoglycemia, hyperammonemia. ठीक है, लेकिन आप तीनों पढ़ोगे तो तीनों में another criteria is chronic and progressive symptoms, जिसमें developmental delay मिलेगा, है ना, epilepsy और seizures and other neurological illness. And third is organ specific. Organ specific में hepatopathy means कि liver function test में जो आप टेस्ट करोगे, जो एंजाइम्स लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए करते हो, that will be abnormal, like and serum bilirubin conjugated and conjugated can be abnormal. ठीक है, ALT, AST, ALP, those will be abnormal. Along with that क्या होगा कि organs का अगर आप जब फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो these liver आप पैल्पेट करोगे तो उसका साइज आपको बड़ा मिल सकता है. दैट मीन्स हेपेटोमेगाली हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है. ठीक है, कार्डियोमायोपैथी, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हाइपोटोनिया हो रहा है मसल्स में. ठीक है, या स्पास्टिक मसल्स हैं. फिर न्यूरोलॉजिकल में वही है कि डेवलपमेंटल डिले होगा तो सब नॉर्मल IQ होगा. ये सीजर्स हो सकते हैं पेशेंट को. ठीक है, रीनल हो सकता है, गैस्ट्रोएंट्रिक हो सकता है जिसमें वॉमिटिंग है, डायरिया है, और हिमेटोलॉजिकल इलनेस भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको G6PD डिफिशियंसी में अबनॉर्मल RBCs स्मेयर में मिलते हैं. ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट्स. अब इसमें जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ये तो स्पेक्ट्रम हो गया. अब हमें जो पढ़ना है, बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है ये अभी लाइक ऐड हुआ है, इस साल से ऐड हुआ है, पहले ये वाली चीज नहीं थी. तो अभी आप लोगों ने अगर आपके पास बुक खोली होगी तो बुक आप खोल लो जो प्रैक्टिकल की बुक है, एंड उसमें होगा, उसमें जितनी जो भी स्क्रीनिंग के लिए जितनी लाइक 6 एबनॉर्मेलिटीज हैं, बस हम उसी को डिस्कस करेंगे. ठीक है, डिटेल में. अदरवाइज वो जनरलाइज करके बाकी चीजें भी हम देख लेंगे. और आप जब पूरी बायोकेमिस्ट्री हो जाएगी तो आप खुद से अपना एक चार्ट बना सकते हैं कि आपने सारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, फिर जब सेल ऑर्गेनेल्स से भी रिलेटेड आगे पैरोक्सिसोमल, माइटोकॉन्ड्रियल, ये सारी एबनॉर्मेलिटीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, ये सारी चीजें आप जो है अपनी लिस्ट बन जाएगी कि ये कितनी इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की ये है. ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी फिनाइल कीटोनुरिया. ठीक है, सो नेम से लग रहा है कि फिनाइल कीटोन्स नूरिया है, मींस की यूरिन, फिनाइल कीटोन्स इन यूरिन, है ना. इसलिए अगर फिनाइल कीटोनीमिया होता तो फिनाइल कीटोन्स इन ब्लड हो जाता. सो फिनाइल, अब हम यहाँ पे स्क्रीन किसको कर रहे हैं, यूरिन को कर रहे हैं, इसलिए वी विल टॉक अबाउट
whatever is present in urine. So phenylketonuria में क्या होगा, नाम से ही लग रहा है कि फिनाइल एलानिन का कुछ डिस्टर्बेंस होगा मेटाबॉलिज्म, है ना। तो फिनाइल एलानिन जो है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। फिनाइल एलानिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, बिकॉज इससे बहुत सारी चीजें बनती है बॉडी, है ना। फिनाइल एलानिन, बाय द एक्शन ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इट गेट्स कन्वर्टेड टू टायरोसिन। ठीक है, अब टायरोसिन के कितने यूजेस होते हैं कि टायरोसिन से आपका पूरा डोपा, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये कितने इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये बनते हैं। फिर टायरोसिन से आपके मेलानिन पिगमेंट्स बनते हैं, दैट बिकॉज ऑफ दैट आपके हेयर का कलर ब्लैक होता है ना। आपकी स्किन में जो मेलानिन से मतलब उसका पॉजिटिव रोल, बिकॉज हमें शायद मेलानिन पिगमेंट पसंद नहीं है अपने स्किन में, बट उसका पॉजिटिव रोल क्या होता है, इट हेल्प्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। तो ये एक हमारे लिए फिजिकल नेचुरल सन ब्लॉक की तरह काम करता है और सनस्क्रीन की तरह काम करता है। मेलानिन कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जिनके अंदर मेलानिन की डेफिशिएंसी होती है, लाइक जितने यूरोपियन डिसेंट्स के लोग हैं, अमेरिकन है, जो जिनके अंदर मेलानिन कम है, उनमें क्या होता है, उनके अंदर स्किन कार्सिनोमा के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो इसलिए कितने यूजेस हैं मेलानिन के, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि फिनाइल एलानिन से टायरोसिन कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, कुछ बच्चों में। तो अब क्या होगा, अब उनके टायरोसिन ही नहीं बन पाया, तो फिर फर्दर आगे जितना कुछ भी होना है, मेलानिन बनना है, डोपा बनना है, एपिनेफ्रिन, तो सारी चीजें डेफिशिएंट हो जाएंगी उसमें, है ना, उस बच्चे में। तो अब एक चीज और ध्यान में रखिए कि आप जब ये पढ़ते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो इसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, by the action of certain enzyme certain substrate is getting converted to product which is required by the body, है ना, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर उस एंजाइम की कहीं पे भी इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हो रहा है, दैट मीन्स कि एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है, या तो डेफिशिएंसी हो रही है या वहां पे बिल्कुल भी एंजाइम नहीं है। तो दैट मीन्स कि अब क्या होगा कि सबस्ट्रेट का एक्सेस हो जाएगा और प्रोडक्ट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना। तो वी विल एक्सपेक्ट फ्रॉम द पेशेंट कि बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट्स some manifestations must be there, and because of the excess of the substrate some manifestations must be there, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तो ये जो नॉर्मल पाथवे था फिनाइल एलानिन का टायरोसिन, ठीक है, तो यहाँ पे टायरोसिन की डेफिशिएंसी हो रही है, फिनाइल एलानिन का एक्सेस हो रहा है, दो चीज हो गई। और तीसरी चीज क्या होगी कि ये जो नेचुरल पाथवे, इसका मेन जो प्राइमरी पाथवे है, उसके अलावा जब एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट, वो क्या हो जाएगा, किसी ऑल्टरनेटिव पाथवे को में वो एंटर करके और सम अदर प्रोडक्ट्स भी बना सकता है, दैट विल आल्सो बी अनवांटेड प्रोडक्ट्स, है ना। तो along with substrates हम unwanted side products can also get accumulated in these type of errors of metabolism. So what happens, this will lead to increase in substrate, decrease in product, and diversion of substrate to alternative pathways. As a result will lead to accumulation of some undesirable or maybe toxic compounds, ठीक है। यहाँ पे फिनाइल पायरुवेट एसिड विल बी इन एक्सेस, ठीक है। तो अब हम इसको फेनाइलकीटोनुरिया को डायग्नोज करने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे पेशेंट्स में फिनाइलकीटोनुरिया के पेशेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स होंगे। अभी जैसे कि हमने बात किया कि टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन पिगमेंट्स नहीं होंगे, तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या होगा, हाइपोपिगमेंटेशन होगा, है ना। अल्बिनिज्म, वो बिल्कुल देखो मैंने फोटो लगाई हुई है कि बच्चे कैसे दिखते हैं, इनके हेयर का कलर भी गोल्डन हो रहा है, ब्लैक नहीं है, और स्किन का कलर भी वैसे,
ठीक है। और उसके बाद क्या है, इन्हें एक्जिमा होगा, बिकॉज वही है, मेलानिन पिगमेंट्स नहीं है, तो बॉडी जो है एक्जिमा क्यों क्यों होता है कि जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं उनसे स्किन जो है वो कोप अप नहीं कर पाएगी, और वहां पे स्किन में ब्लिस्टर्स हो जाएंगे और इन्फ्लेमेशन होगा और स्किन नॉर्मल नहीं रहेगी। फिर क्या होगा, सीजर्स, लिम्ब स्पास्टिसिटी। सीजर्स, लिम्ब स्पास्टिसिटी क्यों होगी, बिकॉज डोपा नहीं है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन नहीं है, तो जो बैलेंस होता है पॉजिटिव मतलब एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का इनसाइड द नर्वस सिस्टम, वो बैलेंस मेंटेन नहीं रह पाएगा, एंड दैट विल लीड टू सीजर्स, लिम्ब स्पास्टिसिटी हो सकती है। और सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, बिकॉज स्टार्टिंग में ही जब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, डेवलपमेंट जो बच्चों का स्टार्टिंग के 7 इयर्स ऑफ लाइफ में होता है, वो वही तो डेवलपमेंट होता है, और उस टाइम डेफिशिएंसी ये तो हो ही नहीं पाएगा। और माउसी ऑर्डर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। माउसी ऑर्डर किस चीज में होता है, जितने भी सिक्रीशंस बॉडी के हैं, लाइक यूरिन में उसके होगा, स्वेट में होगा बच्चे के, ठीक है। तो माउसी ऑर्डर क्यों होता है, माउसी ऑर्डर होता है यही जो एक्स्ट्रा वाले फिनाइल पायरुवेट और जो ये फिनाइल कीटो एसिड्स हैं इनके डिपोजिशन की वजह। तो अब हम इस जहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। हमें सस्पेशन है कि इसमें हो सकता है, तो हम टेस्ट करेंगे फिनाइल कीटोनूरिया के लिए। तो क्या करने हैं, हमें सस्ते वाले टेस्ट करने हैं। ऑल्दो जब स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं तो हम डायग्नोसिस नहीं बनाते, सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पे हम कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करते हैं। उसके लिए कुछ कॉस्टली टेक्निक्स होती हैं, वो उसमें हम जिसमें हम डायरेक्टली ये मेटाबोलाइट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये क्या होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, है ना। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये टेस्ट में, ठीक है, कि ये फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और सिम्टम्स भी है तो हो सकता है, बट कंफर्म नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें कंफर्म भी करना होता है ना। तो जैसे कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट और FeCl3 टेस्ट कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमने ये देखा कि जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फिनॉल ग्रुप, but that gives positive ferric chloride test. But it's also seen that some double bond OH group, enols, and some hydroxamic acids, oxymes, and sulfenic acids, they also give positive test. तो अब क्या हो गया, this is not the specific test for phenols only, तो नॉन स्पेसिफिक है, बट एटलीस्ट अभी सस्पिशन पे चल रहे हैं, बिकॉज सबसे जो ज्यादा चांसेस होते हैं ना कि आप, बिकॉज देखो क्या है, मेंटल रिटार्डेशन है, एक्जिमा, हाइपोपिगमेंटेशन, तो इसमें आप बहुत सारी अदर चीजें भी डिटेक्ट कर सकते हो कि ये बच्चे में ये हो सकता है, ये हो सकता है, आगे जब आप मेडिसिन पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन हम सीधा इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म पे नहीं जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत रेयर भी है। लेकिन क्या होता है कि जब अगर टेस्ट कराएंगे, अगर ये भी पॉजिटिव आते हैं तो फिर आप आगे बढ़ते हैं, है ना, कि आगे पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो लाइक होता है ना एक क्या कहते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो जाता है कि पहले सस्पिशन था, अब फिर हम ये स्क्रीनिंग टेस्ट किया कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है कि पॉजिटिव है, तो फिर आगे हमें कॉन्फिडेंस होता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी शायद पॉजिटिव आ जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, पेरिक्लोराइड टेस्ट में, मुझे लगता है ये टेस्ट आप लैब में करोगे भी नहीं, बट जस्ट टू नो कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम, बिकॉज ये बहुत ही स्क्रीनिंग टेस्ट है और बहुत वैसे वाले हैं कि आप कहीं पे भी इन चीजों को रख सकते हैं, इसके लिए बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए। बेंचटॉप पे टेस्ट कहते हैं इसको, कि जो आप बेंचटॉप पे कर सकते हैं इसको, इसके रिएजेंट्स कॉस्टली नहीं होते हैं, इजी होता है परफॉर्म करना, टाइम टेकिंग नहीं है, कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, इसलिए आपको मालूम होना है।
करते हैं। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या करेंगे, इसको कैसे कर 5 ml यूरिन लेते हैं, पास्ड यूरिन होता है लेते हैं, ठीक है। तो 5 ml ऑफ यूरिन 3 to 4 ड्रॉप्स डालते हैं फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, जो कि 10 ग्राम% बनाया हुआ होता है में बनाते हैं। हाँ, तो फिनाइल पायरुवेट जब इसमें प्रेजेंट होगा यूरिन में, तो दैट विल रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड, तो इसके साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ठीक है। एंड दैट गिव्स ग्रीन और ब्लू कलर टू द सोल्यूशन, और ये टेस्ट विच इज स्टेबल फॉर 1 to 2 minutes, मीन्स कि आपके रिएक्शन हुआ, ग्रीन और ब्लू कलर आया, दैट विल स्टे फॉर 1 to 2 minutes ओनली, ठीक है। दिस इज अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट एंड इफ पॉजिटिव टू बी कंफर्म बाय अ डायग्नोस्टिक, ठीक है। अगर पॉजिटिव आता है आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाना पड़ेगा, उसके लिए करते हैं एनएमआर करते हैं, दैट इज क्या कहते हैं, मैग्नेटिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस चीजें टेस्ट जो है बहुत कॉस्टली होते हैं, ये बाद में डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह यूज होते हैं, बिकॉज इसमें पर्टिकुलरली हम क्या फिनाइल कीटोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर दूसरा टेस्ट क्या है, इसको डीएनपीएच कहते हैं। डीएनपीएच का फुल फॉर्म डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। इसमें भी 2 ml यूरिन सैंपल इज एडेड to an equal amount of DNPH reagent in a test tube and mix करते हैं। A yellow precipitate indicates the presence of keto acid, that is phenyl pyruvates, after 10 minutes. इसमें 10 minutes के बाद both these tests together indicate phenylketonuria but are not specific, ठीक है। अब next is alkaptonuria, ठीक है। तो alkaptonuria में उसी लिंक को आगे बढ़ाओ, फिनाइलएलेनिन से टायरोसिन बनना था, टायरोसिन के बाद फर्दर 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट बाय द एक्शन ऑफ टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज बनना था, उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डाइऑक्सीजनेज, ठीक है। डाइऑक्सीजनेज के एक्शन से इसे होमोजेंटिसिक एसिड बनना होता है, ठीक। उसके बाद ये होमोजेंटिसिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड टू मैलिल एसिटोएसीटेट, ये नॉर्मल इसका मेटाबॉलिक पाथवे है जब भी फिनाइलएलेनिन जो है वो बॉडी में ऐसे ही यूज अप होती है। बट क्या होता है यहाँ पे कि जो होमोजेंटिसेट 1,2 डाइऑक्सीजनेज एंजाइम है, दैट इज डिफेक्टिव और डेफिशिएंट इसमें पेशेंट में। तो अब क्या हो गया, डाइऑक्सीजनेज नहीं है तो होमोजेंटिसेट विल गेट एक्यूमुलेटेड, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाएगा ये। तो उसके बाद क्या होगा, इसका क्या होता है, ये जब एक्यूमुलेट होता है तो ये ऑल्टरनेटिव जो रिएक्शन में जाता है उसमें इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्विनोन्स, ठीक है। तो बेंजोक्विनोन्स जब बनते हैं तो इसमें क्या होता है, बेंजोक्विनोन्स का जो जब ये गेट्स accumulated inside leads to the achronotic pigment, इसलिए कहते हैं because it leads to darkening of that particular area जहां पे भी वो present हो, ठीक है। तो यूजुअली देखा गया ये कार्टिलेजिनस एरियाज में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस एरियाज कहाँ कहाँ होंगे, जॉइंट्स में होंगे, है ना, और अपना जो पिन्ना है ईयर का यहाँ पे होंगे, तो ये सारी एरियाज में, और फिर कुछ कनेक्ट और अदर कनेक्टिव टिश्यूज में, लाइक कि जो अपने स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज है उसमें वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू डार्क कलर अपीयरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। इसलिए क्या होता है, पेशेंट का जो यूजुअली सिम्टम, मतलब जो कंप्लेंट अल्काप्टोनुरिया में यूजुअली जो मेन कंप्लेंट होती है ना, वो आर्थराइटिस की होती है, ठीक है। पेशेंट्स के वही कि जॉइंट लिगामेंट्स में डिपॉजिट होते हैं और वहां पे इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को जॉइंट पेन होता है। बट अदर चीजें और क्या क्या इसमें साइंस एंड सिम्टम्स है, तो साइंस में यही है कि ब्लैक कलर का यूरिन होता है, बिकॉज जब फ्रेशली पास्ड यूरिन ब्लैक नहीं होता, but on standing after few minutes this urine
में जो होमोजेंटिसेट होता है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ एयर, जो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक एयर से कंबाइन करके ये बेंजोक्विनोन्स बन जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट द कलर ऑफ द यूरिन इज डार्क, ब्लैक और ब्राउन ऐसा कलर हो जाता है। बट उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा है तो बच्चे में कहते हैं कि बच्चे के नैपकिन जो है वो इस कलर के हो जाते हैं, डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है, जो कंप्लेंट्स आती है। तो फिर हमारा सस्पिशन जाता है कि अल्काप्टोनूरिया हो सकता है। फिर वही और क्या है, देखो यहाँ पे पेरीओरल एरिया जो है यहाँ पे भी ब्लैक पिगमेंटेशन हो रहा है ना, टेंडिनाइटिस हो जाएगा बिकॉज टेंडन्स भी कनेक्टिव टिश्यूज है, वहां डिपोजिशन होगा तो किडनी में डिपोजिशन होगा तो स्टोन्स हो सकते हैं, और फिर इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स में होगा तो काइफोसिस और हंचबैक एब्नॉर्मैलिटीज हो जाती है कुछ में। तो अब हम इसके लिए क्या टेस्ट करेंगे, अल्काप्टोनूरिया अगर सस्पेक्ट किया है तो इसके लिए वही है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, इसमें भी करते हैं बिकॉज क्या था उसमें कि कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहाँ पे भी बेंजोक्विनोन जो है इसमें भी देखो फिनोलिक है ना, उसके बाद उसके साइड में और है बट फिनोलिक ग्रुप भी है इसमें। तो इसमें अल्काप्टोनूरिया में भी क्या होगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। और दूसरा क्या करते हैं कि होमोजेंटिसिक एसिड जो है ना ये रिड्यूसिंग कंपाउंड, देखो रिड्यूसिंग कंपाउंड क्यों है, बिकॉज इसमें क्या है OH ग्रुप भी है COH ग्रुप भी है, तो इसकी वजह से ये बेनेडिक्ट टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बट वही इट्स नॉट स्पेसिफिक। और इसमें बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो ब्राउनिश कलर का आता है, नॉर्मली क्या होता है ब्रिक रेड कलर के का प्रेसिपिटेट आता है, बट होमोजेंटिसेट जो है ये इसमें ब्राउनिश कलर का प्रेसिपिटेट आता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा कुछ क्वेश्चंस भी है। Asked by Yash Kumar, ma'am, what is the lifespan of person having PKU? PKU के उन पेशेंट्स होते हैं, अगेन ये है कि डिपेंड करता है का मतलब देखो जितने भी इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म वाली चीजें हैं, इसमें ये होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कब है। अगर अर्ली लाइफ में प्रेजेंटेशन हो जाता है ना दैट मीन्स कि ये सीवियर हो गया, सीवियर चीज थी। अच्छा फिर उसके बाद है कि आपने उसको आइडेंटिफाई कब किया और कितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है डाइट्स का ही ज्यादा है कि डाइट्स मॉडिफाइड ऐसी डाइट देंगे जिसमें फेनाइलएलानिन नहीं होता है, तो शायद आई थिंक ये प्लांट ओरिजिन का जो फूड है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो और फिर इसकी डाइट्स भी आती हैं, अलग से आती हैं जिसमें फेनाइलएलानिन डेफिशिएंट डाइट्स होती हैं। तो वो सारी चीजें अगर स्टार्ट कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि इनकी लाइफ स्पैन ठीक ठाक रहती है। ठीक है, बस कुछ चीजें ऐसी हैं बिकॉज क्या होता है कि अब जैसे फिनाइल कीटोनूरिया में कि मेंटल अगर कंप्लीटली फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है, जैसे मैंने कहा कि कुछ डेफिशिएंट होती है, बिल्कुल चल रहा है, तो क्या होता है ऐसे पेशेंट्स में सिवियरिटी सबकी एक सी नहीं होती है, ये डिपेंड करती है, किसी की बहुत ज्यादा है किसी की बहुत कम है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट इनका लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद है I had read that ferric chloride test is banned in India. Why is such? Ferric chloride test is नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो नहीं पता है कि बैन हुआ बिकॉज फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है मुझे लगता है मैंने अपने एमडी थीसिस के टाइम में भी फेरिक क्लोराइड टेस्ट किया था, बिकॉज मेरा जो कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट था वो भी फेनोलिक था, उसके लिए मैंने फेरिक क्लोराइड टेस्ट तो किया था। बैन तो नहीं है ये, बट ठीक है अगर ऐसा कहीं पढ़ा है तो मुझे बता दो कहाँ पढ़ा है कि मैं पता करूंगी कि फेरिक क्लोराइड क्यों बैन किया है। अच्छा, फेस क्रीम्स which come in name of making person of fair color, do they have their impact on melanin production or somewhat else?
पता नहीं कि ये मेलानिन पे इफेक्ट डालते हैं। तो अगेन वही चीज है, जैसे कि अभी ये तो फेयर कलर के लिए जो आती है, जैसे फेयर कलर के लिए सबसे ज्यादा फेयर एंड लवली आती है, जो इंडिया का समझो वो हो गया है, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे उसका वो है फेयर एंड लवली का। बट उसमें तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो उसमें कुछ ऐसे पाउडर्स डालते हैं, कैलामिन सॉर्ट ऑफ डालते हैं, जिसकी वजह से जब आप लगाते हैं तो उसी टाइम ऐसा दिखता है, बट वो परमानेंटली नहीं होता है। हाँ, सन स्क्रीन्स में कहते हैं कि सन स्क्रीन जो है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सन स्क्रीन्स की वजह से क्या होता है कि और मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्किन में बढ़ जाता है, और वो अच्छा नहीं होता है। बट अगेन वही है कि डाइवर्जन हो जाएगा यहाँ पे, दीज थिंग्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो हम इसको कभी बाद में डिस्कस करें। ठीक है, उसके बाद क्या है, फेरिक क्लोराइड बात कर ली, बेनेडिक्स कर लिया। अब एक और चीज बची, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। एक सिल्वर नाइट्रेट था, जब हमने पढ़ा था कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन में हम क्लोराइड को डिटेक्ट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूज करते थे, है ना। बट वहां पे क्या था, वहां पे अमोनियकल नहीं था। तो वहां क्या होता था कि सिल्वर नाइट्रेट से और जो यूरिन में क्लोराइड है वो एक्सचेंज हो जाएगा एनायन का, और सिल्वर क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना, प्रोडक्ट आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि अमोनियकल, अमोनियकल इसलिए बिकॉज इसको अल्कलाइन पीएच चाहिए, तो हमने अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाया। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको यूज करेंगे। ये 5 ml of AgNO3 solution and 0.5 ml of black precipitate is immediately formed। तो इसमें क्या होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाता है, किसका, होमोजेंटिसिक एसिड का। ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ, क्यों हो जाता है, बिकॉज क्या होता है अल्कलाइन मीडियम में कि होमोजेंटिसिक एसिड का क्या होता है, ऑक्सीडेटिव पोलीमराइजेशन होता है। ठीक है, टू क्विनोन डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्विनोन डेरिवेटिव्स में ये चीज होता है। ठीक है, एंड दैट क्विनोन डेरिवेटिव्स, उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक ब्राउन। ये क्यों होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, क्विनॉन्स दे लीड टू द रिडक्शन ऑफ सिल्वर। यहाँ पे AgNO3 जो है Ag प्लस के फॉर्म में है ना, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, बट दैट एक्शन ऑफ बेंजोक्विनोन्स दैट लीड्स टू, क्या हो जाएगा, बेंजोक्विनोन्स अब नाइट्रेट ग्रुप्स को ले लेंगे, उनका नाइट्रेशन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि NO3 में प्लस प्लस साइन होता है, और जितने भी क्विनॉन्स है जिसमें फिनोलिक ग्रुप होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स होती है, जैसे OH ग्रुप है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, NO3 प्लस जो है उसको, उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ जाएगा। तो बेंजोक्विनॉन्स विल एक्सट्रैक्ट सिल्वर का जो है वो रिडक्शन हो जाएगा, दैट सिल्वर रिड्यूस्ड सिल्वर जो होगा मेटालिक। ठीक है, इसकी वजह से प्रोडक्ट ब्लैक ब्राउन किसकी वजह से है, रिड्यूस्ड सिल्वर, मेटालिक सिल्वर की वजह से। ठीक है, ये हो गया। तो इसको ऐसे याद रखना कि अल्केप्टोनूरिया में किस कलर का यूरिन होता है, और दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेटिव पोलीमराइजेशन को बेंजोक्विनोन्स के फॉर्म में बन गए। और फिर अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट में भी कैसा कलर आएगा, ब्लैक कलर। ठीक है, अब थर्ड जो है वो पढ़ेंगे हम, मेपल सिरप यूरिन डिजीज। ठीक है, मेपल सिरप यूरिन डिजीज में, मेपल सिरप यूरिन डिजीज में हम क्या पढ़ेंगे कि दिस इज मेन डिजीज में क्या होता है, ये भी अबनॉर्मेलिटी अमाइनो एसिड्स की ही है, बट कौन सी, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, है ना, जो भी है हाइड्रोफोबिक ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, कौन कौन सी, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, है ना, ब्रांच चेन। तो इनका जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें डिफेक्ट आता है, एंड बिकॉज ऑफ विच एंजाइम,
ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो क्या होता है सबसे पहले मेटाबॉलिज्म अमाइनो एसिड्स का होता है, सबसे पहले इनका जो है वो ये कीटो एसिड्स में कन्वर्ट होती है। अमाइनो एसिड्स कीटो एसिड्स में, अमाइनो ग्रुप का क्या हो जाता है वहां से, तो जैसे ल्यूसीन गेट्स कन्वर्टेड टू 2 कीटो आइसो कैप्रोएट और कैप्रोइक एसिड। आइसोल्यूसिन गेट्स कन्वर्टेड टू 2 कीटो 3 मिथाइल वैलरिक एसिड और वैलरेट। एंड वैलिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 कीटो आइसो वैलरेट और वैलरिक एसिड। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर इनका फर्दर डिहाइड्रोजिनेशन होना होता है। बट ये जो बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा तो अब क्या होगा, इनका एक्युमुलेशन ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स कीटो एसिड्स will be there in this debate। अब इसमें क्या होता है, फिनाइल कीटोनुरिया में अब में ऐसे बच्चों में क्या कंप्लेंट्स क्या होंगी, तो कंप्लेंट्स ये होगी कि ये बच्चे, ठीक है, इनके इनकी कंप्लेंट्स ये होती है बच्चे में कि ये बच्चे फीड नहीं लेते हैं, ठीक, खाते ही नहीं, बिकॉज उनके क्या हो रहा है, ये एबनॉर्मेलिटी हो रही है, कीटो एसिड्स बन रहे हैं तो, और एसिडीमिया हो रहा है, ब्लड का पीएच लो हो रहा है, तो ये इरिटेबल होंगे। और क्या होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इट, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, दीज आर द फीचर्स ऑफ लो पीएच, जो किसी में भी हो सकता है। तो पुअर फीडिंग, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, बेबी विल बी इरिटेबल एंड इट विल बी स्लगिश, स्लो एंड टायर्ड, और वीकनेस होगा बेबी में, और क्या है, पुअर मसल टोन एंड पुअर वेट गेन। ठीक है, वेट गेन भी नहीं होगा। तो एज पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये इरिटेबल बच्चा लग रहा है आपको। ठीक है, मसल है, इसमें भी टोन नहीं है, हाइपोटोनिक है, इरिटेबल। के लिए मैंने उसी वही लगा बिकॉज इसमें, ठीक है, यही 2 टेस्ट हैं एमएसयूडी के लिए, मेपल सिरप यूरिन डिजीज के लिए। इसमें जो एक अलग से मेपल सिरप यूरिन डिजीज का जो फीचर है वो ये है, यूरिन जो है वो मेपल सिरप की तरह उसकी स्मेल होती है। मेपल सिरप वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत यूज करते हैं लोग, मतलब किसमें यूज करते हैं, चीनी चीनी की जगह पे उसको यूज करते हैं मेपल सिरप को। बट यहाँ पे हम कैसे बात करते थे कि मेपल सिरप का की जो स्मेल होती है वो, उसकी स्मेल कैसी होती है, तो बर्न शुगर स्मेल यूरिन में होता है ऐसे बच्चों में। जैसे फिनाइल कीटोनुरिया में माउसी ऑर्डर था, है ना, कैप्टोनुरिया में कैसा हो रहा था, ओक्रोनोसिस हो रही थी, ब्लैक पिगमेंटेशन हो रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेपल सिरप में बर्न शुगर स्मेल यूरिन की हो रही है, तो फिर हमारा सस्पिशन जाएगा कि मेपल सिरप यूरिन डिजीज के बच्चे को आ रही है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फिनाइल कीटोनुरिया में भी कीटो एसिड्स थे, है ना, फिनाइल कीटो एसिड्स थे, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी कौन सी है, ब्रांच चेन कीटो एसिड्स, बट है तो कीटो एसिड्स, तो इसलिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा और डीएनपीएच भी पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा कोई इसका खास स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, बस वही है कि यूरिन की स्मेल जो है दोनों की डिफरेंट हो। अदरवाइज कंफर्म करने के लिए जो है आपको वही इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस करना है, उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मेटाबॉलिक अरेंजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट इज होमोसिस्टीनूरिया। ठीक है, तो होमोसिस्टीन, ठीक है, तो होमोसिस्टीनूरिया जो है उसमें होमोसिस्टीन का होमोसिस्टीन का डिपोजिशन बढ़ जाता है। ठीक है, और ये मिथियोनिन से होमोसिस्टीन
और फिर होमोसिस्टीन से आगे जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाता, एंड दैट विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ होमोसिस्टीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कैसे आपका सस्पिशन होगा, दैट विल बी व्हेन द पेशेंट इज कंप्लेनिंग अबाउट मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, इसमें आई लेंस डिसलोकेशन भी होता है, जैसे देखो यहाँ पे सेकंड वाली पिक्चर है ना, इसमें दिख रहा है ये जो पिपल के अंदर ऊपर जो ब्लैक कलर की बाउंड्री दिख रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ सबलक्सेशन ऑफ द लेंस। लेंस जो है वो नीचे की तरफ है, इसलिए पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक ब्लैक जो है लेंस से पीछे वाला वो दिख रहा है। ठीक है, और मार्फेनॉइड बॉडी हैबिटस, मार्फेनॉइड कहते हैं कि लिम्स जो है एक्सट्रीमली लॉन्गर और मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं होंगे हाइट से, और बहुत पतले पतले होंगे लिम्स, लंबे लंबे हो गए। ठीक है, हाई आर्च पैलेट होता है, और फिर अरेक्नोडैक्टाइली होती है, लाइक स्पाइडर लाइक इनकी डिजिट्स और फिंगर्स होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, और एक्यूट वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस, बिकॉज होमोसिस्टीनीमिया जो एक्सेस ऑफ होमोसिस्टीन इन द ब्लड लीड्स टू रिस्क ऑफ एक्यूट वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस। ठीक है, इसमें भी होमोसिस्टीन जो है ब्लड में चेक करते हैं, ये रिस्क फैक्टर जानने के लिए। ठीक है, इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं, टीन और मिथ्योनिन दोनों बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि मिथ्योनिन गेट्स कन्वर्टेड टू होमोसिस्टीन, तो होमोसिस्टीन जब एक्यूमुलेट हो रहा है तो पीछे मिथ्योनिन भी एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना, और फिर होमोसिस्टीन से क्या बनता है, सिस्टीन, तो सिस्टीन बन ही नहीं रहा है तो होमोसिस्टीन विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंजाइम, अरे एंजाइम कौन सी थी, सिस्टाथायोनिन सिंथेज। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, विच लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू सिस्टीन। फिर क्या होगा, इसके लिए कौन सा टेस्ट, इसके लिए सिर्फ एक टेस्ट है, वो है साइनाइड नाइट्रोफुसाइड टेस्ट। ठीक है, ये करते हैं। एक गुथरी टेस्ट भी है, बट दिस इज फॉर मेथियोनिन के लिए करते हैं, और ये ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट नहीं। ठीक है, तो अब इसमें साइनाइड नाइट्रोफुसाइड टेस्ट जो है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स कंटेनिंग सल्फर। ठीक है, तो सिस्टीन और सिस्टाइन, सिस्टाइन इज अ डायमर ऑफ सिस्टीन, तो क्या होगा, डायमर है बट स्टिल उसमें तो सल्फर ग्रुप है ना, इसलिए लेकिन सल्फर ग्रुप है बट क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ पे सिर्फ सल्फाइड बॉन्ड है सिस्टीन में, तो इसलिए सिस्टाइन नहीं देगा इसको, तो हमने क्या किया है, इसमें जो साइनाइड डाला है, साइनाइड विल ब्रेक सिस्टाइन से, इसका जो डायमर है इसको मोनोमर में चेंज करेगा, उसके बाद नाइट्रोसाइड उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, साइनाइड का रोल यहाँ पे यही है। So what happens? Cysteine and cystine gives a red, purple color called Morton test. इसको कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, 1 ml of protein solution और urine solution हम लेंगे in a test tube, and 3 drops of 5% solution of sodium nitroprusside. Mix well and add 2 drops of ammonia, so the deep red purple color appears, also called Morton's test. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोपुसाइड, दिस नाइट्रोपुसाइड presence of cysteine will give red color complex. ठीक है, नेक्स्ट इज गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया में जो पेशेंट है उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, गैलेक्टोसीमिया में क्या डिरेंजमेंट क्या होती है, इसमें गैलेक्टोसीमिया में जो है ये 3 टाइप्स की डिरेंजमेंट। ठीक है, होमोसिस्टीनीमिया में भी होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज अभी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो गैलेक्टोसीमिया में भी यही है कि 3 लेवल पे एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, एट द लेवल ऑफ गैलेक्टोकाइनेज, जहां पे दैट इज हेल्पिंग इन कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज टू गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। हाउ गैलेक्टोज इज यूटिलाइज्ड, है ना, इनसाइड द बॉडी कैसे होता है, बिकॉज अल्टीमेटली यूटिलाइजेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज थ्रू कौन से ग्लाइकोलाइसिस से होना है, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, बट गैलेक्टोज तो नहीं है, तो गैलेक्टोज नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है, 3 एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, एंड दिस प्रोसेस हैपेंस इनसाइड द लिवर, लिवर में ये काम हो रहा है, तो वहां पे कौन कौन सी एंजाइम चाहिए, फर्स्ट चाहिए गैलेक्टोकाइनेज व्हिच विल कन्वर्ट गैलेक्टोज टू गैलेक्टोज 1 phosphate, and then galactose 1 phosphate will be converted to glucose 1 phosphate by the action of क्या है, UDP ग्लूकोज,
यूडीपी ग्लूकोज से होता है ना। यूडीपी ग्लूकोज जो है वो क्या करेगा, गैलेक्टोज को ले लेगा, अपना ग्लूकोज फॉस्फेट के साथ बाइंड करके ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन जाता है। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द एंजाइम गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज। ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, उसमें फिर अब कोई एपीमरेज लगेगा म्यूटेज को, कहीं पे एपीमरेज लिखा होता है इस एंजाइम को, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के एक्शन से दिस विल बी 1-फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड टू 6-फॉस्फेट। ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कोई भी एंजाइम गैलेक्टोकाइनेज हो, गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज और फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, किसी में भी डेफिशिएंसी है, इसमें एरर है, तो उसमें क्या होगा, गैलेक्टोज विल नॉट बी यूटिलाइज्ड। इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है वो बीच वाले एंजाइम गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफर, ये सबसे कॉमन एंजाइम एरर है। ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट का प्रेजेंटेशन, गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज मोस्ट कॉमन है, मोस्ट पेशेंट प्रेजेंट इन द फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ लाइफ। ठीक है, वीक ऑफ लाइफ में होता है। और क्या होगा, हेपेटोमेगेली होगी। ऐसे पेशेंट देखो देखो बच्चे में मार्क किया होगा ना, इसको जब पैल्पेट किया है तो लिवर का जो लोअर बॉर्डर है वो इन्हें कहाँ तक मिला है। ठीक है। हेपेटोमेगेली, जॉन्डिस हो गया बच्चों में। ठीक है। उसमें और क्या होगा, वॉमिटिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज गैलेक्टोज तो यूज ही नहीं हो रहा, जबकि बच्चा फर्स्ट और सेकेंड वीक में क्या होता है, वो लैक्टोज मदर्स मिल्क पे होता है। ठीक है। और मिल्क में कौन सा, लैक्टोज किसका डायमर है, नहीं हो रहा, सारे जाके लेट हो जा रहा है, दैट विल लीड टू enlargement of the size of the liver के सेल्स, मतलब क्या है, डिस्ट्रेस्ड है, ओवर वहां पे फंक्शन वो नहीं करेंगे कि नॉर्मल जो है बिलीरुबिन को कंजुगेट नहीं कर पाएंगे, तो जॉन्डिस हो रहा है पेशेंट में, फिर क्या होगा, ऐसे बच्चों में वॉमिटिंग होगी, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, बिकॉज गैलेक्टोज तो एनर्जी के लिए यूज ही नहीं हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, डिफिशियंट हो जाएंगे बच्चे, हाइपोटोनिया होगा, मसल्स में ये स्ट्रेंथ नहीं है, और ऐसे बच्चों में कैटरैक्ट होता है। जिस कौन सा, ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट, ये ऑफ्थेल में पढ़ोगे। कैटरैक्ट क्यों हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है बिकॉज गैलेक्टोज जो है ना ऑल्टरनेटिव पाथवे में जब जाता है तो ये गैलेक्टिटॉल बनाता है ना, तो गैलेक्टिटॉल जो बनता है दैट गेट्स डिपॉजिटेड इनसाइड द लेंस, और ये क्या होता है, बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक जो कहते हैं कि उसकी वजह से इसमें ओपेसिटी हो जाती है लेंस में। ठीक है। ओपेसिटी होगी और कैटरैक्ट डेवलप कर बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव पाथवे का जो मेटाबोलाइट है उसकी वजह। भी होंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, नॉर्मली जो प्रेजेंट इकोलाई जो है, ये दिस इज नॉर्मल, व्हाट टू से, नॉर्मल फ्लोरा जो होती है ना, इंटेस्टिनल नॉर्मल फ्लोरा जो प्रेजेंट होती है, उसमें इकोलाई आता है। बट जब इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, मतलब इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं बच्चे या कोई भी इंडिविजुअल, तो क्या होता है कि नॉर्मल जो फ्लोरा है बॉडी की, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एवरीथिंग, तो उसमें अपॉर्चुनिटी में होता है, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसको कहते हैं कि अब मिल गई, बॉडी का डिफेंस सिस्टम लो हो गया, तो अभी इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट खास नहीं है, बेनेडिक्स टेस्ट ही करते हैं, बट बेनेडिक्स करते हैं तो इसमें क्या होगा, हमें पता चलेगा बेनेडिक्स से कि रिड्यूसिंग शुगर है ना, रिड्यूसिंग है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर बारकोड्स करेंगे तो उससे पता चलेगा कि चलो भाई मोनोसेक्राइड, रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड पता चल जाएगा। उसके बाद सेलिवेनॉफ्स करेंगे तो क्या पता चलेगा, सेलिवेनॉफ्स इज फॉर फ्रक्टोज के लिए है, कीटो ग्रुप के लिए है, तो सेलिवेनॉफ वो नहीं आएगा गैलेक्टोज में, सेलिवेनॉफ्स विल बी नेगेटिव, तो हमें पता चलेगा कि ये ग्लूकोज भी नहीं है, ये फ्रक्टोज भी नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, गैलेक्टोज। ऐसे एक्सक्लूजन से हम ये मान लेंगे कि गैलेक्टोज है, बट कहीं कहीं पे लिटरेचर में ये भी लिखते हैं कि टेस्ट होता है फ्लोरोग्लूसिनॉल टेस्ट, ये बुक में नहीं लिखा था इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, बट मैंने कहीं पढ़ा है कि फ्लोरोग्लूसिनॉल, आप लोग देख सकते हो
क्लोरोग्लूसिनॉल टेस्ट भी होता है जो हम गैलेक्टोज आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। इसका तो नाम सबने सुना होगा, है ना, फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल किया होगा, तो ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट के लिए करते हैं, तो उसमें पढ़ाया होगा जो वन ऑफ द कॉजेज है आरबीसीज की मेम्ब्रेन के फ्रेजाइल होने की, उसमें आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी, है ना। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, because glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme, this is important for, इसलिए होती है ये HMP हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे जो है उसमें इट असिस्ट इन प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। तब NADPH का क्या काम है, क्यों रोल है? NADH का तो रोल पता है कि NADH विल अल्टीमेटली लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ ATP, है ना, ETC के थ्रू ATP जनरेट करेगा, और है कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की तरह भी हेल्प करेगा कहीं कहीं पे। लेकिन NADPH का रोल क्या होता है, तो NADPH का रोल मेन जो है वो यही होता है कि रिडक्शन में हेल्प करता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जितना भी बॉडी में है उसको काउंटर करने के लिए NADPH था, है ना, ये रिड्यूस करेगा उसको, दैट विल टेक केयर ऑफ ऑल दोस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और दूसरी चीज क्या है कि ये ग्लूटाथायोन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है ना। जब ग्लूटाथायोन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इट गेट्स कन्वर्टेड टू डाइमर ऑफ ग्लूटाथायोन, GSSG, ठीक है, बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से डाइमर बन जाता है। तो अब ये दिस इज नॉट एट ऑल कैन बी यूज्ड फॉर रिडक्शन प्रोसेस। तो अब उसको फर्दर फिर रिड्यूस होना होता है कि GSSG गेट्स कन्वर्टेड टू GSH बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम NADPH, ठीक है। NADPH ही नहीं होगा, G6PD डेफिशिएंसी है, NADPH ही नहीं प्रोडक्शन हो पा रहा है, तो ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा। और ग्लूटाथायोन का भी काम जो है वो क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी का जो है दैट इज टैकल्ड बाय द हेल्प ऑफ ग्लूटाथायोन। अब ग्लूटाथायोन एंड इट्स सीन कि ग्लूटाथायोन की एक्टिविटी मैक्सिमम जो है वो आरबीसी मेम्ब्रेन्स में होती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन्स में। It take cares of the RBC membranes by tackling with the oxidative stress which these membranes are exposed to, उस वहां पे ग्लूटाथायोन हेल्प। तो अब ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी ठीक है, उसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ जाएंगे। जब वो बढ़ सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन स्पीशीज विल एंटर इनसाइड द आरबीसीज। तो आरबीसीज में क्या है, ओनली हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन भी उसका भी होने लगेगा, और फिर प्रेसिपिटेट ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन जो है वो सोल्यूबल नहीं रहेगी और उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, एंड दैट विल अपीयर अंडर द माइक्रोस्कोप इन द फॉर्म ऑफ हाइंस बॉडीज और वाइट सेल्स के फॉर्म में दिखेगी। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी इंटेग्रिटी फ्लेक्सिबिलिटी मींस की फॉर पासिंग थ्रू द कैपिलरीज, आरबीसीज जो है उनका बाइकॉन्केव जो शेप होता है दैट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ दीज आरबीसीज थ्रू द कैपिलरीज। उनकी डायमीटर बहुत कम होती है, तो ये जब नॉर्मल होते हैं तो फ्लेक्सिबल होते हैं, वहां से पास आउट कर जाते हैं। बट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन डैमेज है तो उस जो नैरो पाथवे है कैपिलरीज का उससे क्रॉस करने में क्या हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, है ना, क्योंकि अब उसमें इंटेग्रिटी नहीं बची है। सेल मेम्ब्रेन्स आर फ्रेजाइल, फ्लेक्सिबल उतने नहीं रहेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑल दीज विल लीड टू हेमोलिसिस। आरबीसीज का हेमोलिसिस होगा तो फिर हीमोग्लोबिन विल बी रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, और उसके बाद वो दैट विल रीच टू द यूरिन ऑल्सो। तो हीमोग्लोबिनूरिया मिलेगा, एनीमिया मिलेगा, बिकॉज आरबीसीज जो है उनका ब्रेकडाउन हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। और फिर हीमोग्लोबिन स्क्रीन में भी ज्यादा जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे जब उनका टर्नओवर होगा तो बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बनेगा, है ना, तो जॉन्डिस भी होगा ऐसे पेशेंट्स में G6PD पे। अच्छा, तो अब यहाँ पे भी दो चीजें किया, तो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी G6PD किया या फिर सम अमाउंट ऑफ डिफेक्ट इज देयर। तो जिसमें एब्सोल्यूट है वो तो बाय बर्थ ही प्रेजेंट होगी, सीवियर फॉर्म में होगी, बट अगर सम सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी होगी तो दैट विल
usually it's seen कि that gets precipitated by some infections. ठीक है, इन्फेक्शन से होता है, जैसे मलेरिया टाइफाइड होता है पेशेंट में, तो उनमें G6PD डेफिशिएंसी जो है वो एकदम ओवर्ट फॉर्म में आ जाती है. कुछ फ्यू ड्रग पहले पेशेंट को कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी, मैनिफेस्टेड फॉर्म में नहीं थी, बट ये ड्रग्स लिए उसके बाद इन्हें ये हेमोलिसिस और एनीमिया वाली प्रॉब्लम हो गई. और फूड प्रोडक्ट्स भी है, जैसे फेवा बीन्स है, उनके खाने के बाद भी इन सम पीपल क्या होता है, दीज प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट. अब इनका माइक्रोस्कोप उसमें मिलेंगे हमें स्फेरोसाइट्स. ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट क्या है, membrane integrity, because GSH or glutathione is abundantly found inside the red cell membrane. ठीक है, and जब glutathione is not in the reduced form, they are no more of any work, उनका कोई काम ही नहीं है फिर. अब fragile, तो इनका शेप भी चेंज हो जाएगा. स्फेरोसाइट्स बाइकॉनकेव से ये स्फेरिकल शेप में दिखेंगे. ठीक है, कुछ न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स क्यों होंगे, क्योंकि जब एनीमिया हो रहा है, लाइक हेमोलिसिस हो रही है आरबीसीज की, ये डिफिशिएंट हो रहे हैं ब्लड में, तो दैट विल बी सिग्नल टू द बोन मैरो में, सिग्नल जाएगा कि ब्लड की डेफिशिएंसी है. आप ज्यादा से ज्यादा इरेथ्रॉइड सेल्स का जो है वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेशन होगा, और ज्यादा से ज्यादा रेटिकुलोसाइट्स बनेंगे एज अ रिजल्ट. तो फिर जब डेफिशिएंसी है तो फिर क्या होगा, फास्ट प्रोसेस में रेटिकुलोसाइट्स जब मैच्योर होकर आरबीसी बनते हैं तब ब्लड में रिलीज होते हैं. बट यहाँ पे इतनी स्कार्सिटी है, क्राइसिस है, तो रेटिकुलोसाइट्स भी, ठीक है, उस चक्कर में हमें ब्लड स्मीयर में रेड सेल दिखेंगे, हमें लगेगा ये न्यूक्लिएटेड रेड सेल, बट ये बेसिकली रेटिकुलोसाइट्स हैं. और क्या मिलेगा, हेमीगोस्ट, इस तरह के हेमीगोस्ट सेल्स की आधा सेल दिखेगा और हल्की सी बाउंड्री दिखेगी, वो पूरा खाली है. और इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्टेड रेड सेल्स मिलेंगे, बिकॉज शेप इरेगुलर है. कैसा, टीयर ड्रॉप सेल्स होते हैं अलग अलग शेप्स के, जैसे इसमें देख रहे हो, यूनिफॉर्मिटी नहीं है हर किसी. ठीक है, अब इसको स्क्रीन करने के लिए एक ही टेस्ट है, वो है सोडियम नाइट्राइट एंड मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट करते हैं. इसमें क्या करते हैं कि इसमें क्या होगा कि हीमोग्लोबिनूरिया हो रहा है, तो यूरिन में हीमोग्लोबिन आ रहा है, तो ये ब्लड में भी करते हैं और यूरिन में भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें तो हीमोग्लोबिन तो यूरिन में भी आ रहा है ना. तो यहाँ पे ब्लड लिखा हुआ है, बिकॉज ये बुक से मैंने लिया है, इसको बुक में लिखा था, बट आप जब पढ़ रहे हो तो ये पता है कि हीमोग्लोबिन तो यूरिन में भी आ जाएगा, और हम तो यूरिन ही स्क्रीन कर रहे हैं, तो हमें ये यूरिन में भी मिलेगा. सो वी कैन परफॉर्म दिस टेस्ट ऑन यूरिन सैंपल्स आल्सो. तो यहाँ पे क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइट और मिथाइलिन ब्लू यूज करते हैं. तो यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट जो है, दिस विल कन्वर्ट हीमोग्लोबिन टू मेट हीमोग्लोबिन, कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, उसके बाद ये मिथाइलिन ब्लू जो है, दिस विल एक्ट एज अ रिडॉक्स कैटलिस्ट की तरह काम करेगा. और यहाँ पे ये नीचे जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये होगा, और फिर हम उसमें से क्या करेंगे, NADPH की एक्टिविटी को वो करके, तो क्या होता है, ऑन एडिशन टू अ सिट्रेटेड ब्लड सैंपल ऑफ बोथ सोडियम नाइट्राइड मिथाइलिन ब्लू, परसिस्टेंस ऑफ ब्राउन कलर इंडिकेट्स डेफिशिएंसी. तो जब मेट हीमोग्लोबिन में चेंज होता है, जैसे हमने तब भी पढ़ा था, जब मैंने पढ़ाया था साइनाइड पॉइजनिंग वाली, उसमें कि मेट हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कलर कैसा होता है, डार्क कलर होता है. नॉर्मल ब्लड से वो डार्क कलर का होता है, ब्राउनिश कलर हो जाता है. तो क्या होता है, वो मेट हीमोग्लोबिन जो है, जो ऑक्सीडाइज हो गया, कि Fe2+ में नहीं, उसका आयरन जो है वो Fe3+ के फॉर्म में, दैट इज डार्क कलर का होता है. अब क्या है, वो ऑक्सीडाइज है, तो मिथाइलिन ब्लू क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा. बट ये रिड्यूस होने के लिए सिर्फ मिथाइलिन ब्लू नहीं, मैंने कहा रिडॉक्स कैटलिस्ट की तरह, तो कैटलिस्ट का काम तो अकेले से नहीं हो जाएगा, तो उसे और क्या चाहिए होगा, NADPH चाहिए होगा. बट क्या है कि ब्लड में NADPH है ही नहीं, डेफिशिएंसी तो इसी की है, तो इनडायरेक्टली हमें पता चलेगा कि NADPH की डेफिशिएंसी है, तो दैट मींस कि इसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होगी, इसी वजह से NADPH की. अदरवाइज नॉर्मल ब्लड जो होगा वो बाय द एक्शन ऑफ मिथाइलिन ब्लू, ब्लड का कलर जो है वो वापस से रेड हो जाना चाहिए. ठीक है, so here hemoglobin is oxidized to a methemoglobin by sodium nitrite, giving a brown color. But if there is no G6PD deficiency, it is reduced back by methylene blue using NADPH
और H+। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम NADPH भी प्रोवाइड करेंगे। नहीं करेंगे। हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हो गया नाइट्राइट से, उसके बाद विल बी यूज्ड, ये उल्टा लिखा हुआ है, NADPH जो है वो यूज हो जाएगा इसमें। ठीक, इसके लिए बस एक, उसके बाद अब ये है कि मेटाबॉलिक टेस्ट है दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन यूरिन और ब्लड में भी करते हैं, तो जिससे हम और क्या क्या करेंगे, पेशेंट का ABG करेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, में MSCUD में भी कीटोन एसिड एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसे पेशेंट्स का पीएच जो है वो बहुत लो होगा। और क्या होगा, एबीजी में और क्या मिलता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे तो कोई फर्क नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, बाइकार्बोनेट्स देखते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी इसमें कम होंगे क्योंकि कंपनसेशन में कीटोन एसिड्स के बाइकार्बोनेट कंज्यूम हो गए होंगे, तो ऐसे पेशेंट का बाइकार्बोनेट भी लो मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या मिलेगा, जैसे G6PD है, तो इसमें क्या हो रहा है, हेमोलिसिस एक्सेस हो रही थी, हेमोलिसिस में क्या होगा, पोटेशियम, पोटेशियम की वैल्यू बहुत ज्यादा रेज होगी, है ना। फिर LFT करेंगे, LFT डिरेंज होगा, जैसे गैलेप्टोसीमिया है, हेपेटोमेगाली हो रहा है तो LFT डिरेंज होगा। KFT करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट, अल्कैप्टोनूरिया, वहाँ किडनी स्टोन्स है और किडनी में इंफ्लेमेशन है, तो वहां पे क्या होगा कि KFT डिरेंज आएगा। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज करेंगे, तो क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज किस किस में, हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह और जैसे कि गैलेप्टोसीमिया हो रहा है तो उसमें क्या, ब्लड ग्लूकोज गॉड पॉड अगर करेंगे नॉन स्पेसिफिक वाला, तो उसमें क्या आएगा, ब्लड ग्लूकोज बहुत लो आएगा। हाइपोग्लाइसीमिया आ रहा है पेशेंट को, अमोनिया है, अमोनिया का प्रॉब्लम आपको कब दिखेगा, यूरिया साइकिल वाले एंजाइम डेफिशिएंसी में, है ना, तो उसमें क्या होगा, यूरिया साइकिल ही नहीं हो पा रही है, लाइक OTC की डेफिशिएंसी, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हमने, बट ऐसे स्पेसिफिकली नहीं किया, बट जनरल बात कर लेते हैं कि अमोनियम, अमोनिया कहाँ पे होगा, अमोनिया का यूज होता है टू फॉर्म यूरिया इनसाइड द लिवर, बट अगर कोई भी एंजाइम डेफिशिएंसी हो रही है, जैसे OTC कॉमन होती है उसमें, और निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज की, बट अगर वो नहीं, कोई भी एंजाइम डेफिशिएंट है, तो अल्टीमेटली यूरिया विल नॉट बी फॉर्म, तो एक्सेस ऑफ अमोनिया विल बी फाउंड इन द ब्लड एंड यूरिन में मिलेगा। ठीक है, फिर लैक्टेट्स है, तो लैक्टेट्स भी रेस मिलेंगे आपको, कि लाइक अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पा रही है, फिर सॉरी, जैसे कि फिनाइल कीटोनूरिया में भी क्या होता है, फिनाइल कीटो एसिड्स में कौन कौन सा, फिनाइल लैक्टेट्स है, फिनाइल पायरुवेट्स है, ये रेज्ड होंगी, लैक्टेट्स बढ़े हुए मिल सकते हैं। ठीक है, फिर यूरिक एसिड पैरामीडिन साइकिल जो मेटाबॉलिज्म है उसमें एंजाइम्स डेफिशिएंट होंगी, तो आपको यूरिक एसिड रेज मिल सकता है। और रिड्यूसिंग शुगर एंड कीटोन्स इन यूरिन, ये अभी डिस्कस कर लिया किस किस में कुछ है, ये मैंने स्लाइड ऐसे ही रख दी थी, आप चाहो तो इस पे वो कर लें कि अब नॉर्मल कलर एंड ऑर्डर ऑफ द यूरिन, जैसे नॉर्मल यूरिन में भी आप यूरिन का जो एनालिसिस जब पढ़ा था, नॉर्मल और एबनॉर्मल, तो उसमें जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उसमें कलर और ऑर्डर, है ना, वॉल्यूम पीएच के बाद कलर और ऑर्डर भी देखना होता है यूरिन का। तो कलर में किस किस तरह का कलर हो सकता है, बेसिकली रिलेटेड विद इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सिर्फ 6 डिस्कस किए, बट इस ग्रुप में बहुत सारे हैं, तो इसमें से हम ढूंढ के 6 निकाल लेते हैं, तो रिवीजन हो जाएगा अभी जो पीछे हमने पढ़ा है। सो यूरिन का अल्काप्टोनुरिया, दैट इज बिकॉज ऑफ होमोजिनेसिस, है ना। हीमोग्लोबिनूरिया और मायोग्लोबिनूरिया भी हो सकता है, हीमोग्लोबिनूरिया कब होगा, दैट विल बी इन G6PD डेफिशिएंसी में हो जाएगा, है ना। मायोग्लोबिनूरिया ये कब होगा कि बहुत ज्यादा मसल्स जो है उनका टर्नओवर बढ़ गया है, ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट विल लीड टू मायोग्लोबिन, ब्लड में यूरिन में अपीयर होगा, यूरिन में भी डार्क ब्राउन और ब्लैक उसका कलर हो जाएगा। रेड कलर कब होगा, तो रेड कलर विल बी बिकॉज ऑफ हेमेटूरिया हो रहा है, ब्लड फ्रैंक ब्लड इज देयर इन यूरिन बिकॉज ऑफ एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंस, तो ब्लड विल बी रेड। हीमोग्लोबिन होगा ब्लड ऑक्सीडाइज होकर के
मेथिमोग्लोबिन और वो बनेगा तो वो डार्क ब्राउन कलर हो जाता है। बट ब्लड है, इरेथ्रोसाइट्स इंटैक्ट अगर है तो उसकी वजह से यूरिन जो है दैट विल अपीयर रेड। वो रेड कलर का होता है। पोर्फायरियास में भी बहुत सारी एंजाइम्स हैं जो कि डेफिशिएंट होती हैं, स्पेशली जो कॉमन है वो एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में वो पीबी पोर्फोबिलिनोजन वाली। तो पोर्फोबिलिनोजन, तो उसमें क्या होता है, यूरिन विल, है ना, इंजेक्शन ऑफ कलर्ड फूड, जैसे बीटरूट वगैरह खाते हैं या कुछ ऐसा फूड खाते हैं जिसमें कलरेंट्स, रेड डाई वगैरह ऐड होता है, उसकी वजह से होता है। बीटरूट्स में एंथ्रोसायनिन कंपाउंड है, उसकी वजह से रेड है। ठीक है, ये सारी चीजें। अल्केप्टोनूरिया में ब्लू और ब्राउन कलर, और ब्राउन और ब्लैक। मैपल सिरप और बर्न शुगर किसमें होगा? मैपल सिरप यूरिन डिजीज में। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे कंपाउंड जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्न शुगर ऑर्डर ऑफ द यूरिन इज सोटोलोन और 2 ऑक्सो आइसोकैप्रोनोइक एसिड। अगर याद करना है तो याद कर लो। और फिर आइसोवैलेरिक एसिडीमिया जो होता है, ग्लूटारिक आइसोवैलेरिक एसिडीमिया हो रहा है तो उसमें क्या होगा, स्वेटी फीड जैसा यूरिन का स्मेल होगा। ठीक है। सिस्टीन्यूरिया में सल्फर की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से उसका सल्फर लाइक स्मेल होगा। बॉइल्ड कैबेज टायरोसिनीमिया में। और क्या है फिर, कैट्स यूरिन नहीं, ये वाला छोड़ो। फिनाइलकेटोनुरिया माउसी, मेपल सिरप तो हो गया। ठीक है। अब इसमें ये वाले टेस्ट हैं जो अभी डिस्कस किया वही है सारे, फिर से रिवीजन। चलो, अब ये हो गया आपकी आज की क्लास। अब किसी को कुछ पूछना है आप, यू आर फ्री टू आस्क। तो लेट मी सी योर क्वेश्चंस। वेरी फेस क्रीम्स हो गया, बट NADPH will be present in urine, so won't we do it in blood only? यूरिन, हाँ, ये वाली चीज है कि यूरिन में तो NADPH नहीं होना चाहिए, तो फिर यूरिन में नहीं होगा तो फिर हम यूरिन में देंगे, है ना। बट आई थिंक कि देखो एग्जैक्टली ये वाला टेस्ट जो है ना हम लोग लैब में करते नहीं है, हमने भी इसको थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है। तो मुझे जो मिला, मैंने थोड़ी डिटेल जाननी चाहिए, तो उसमें मुझे मिला, तो मुझे ये मिला कि मिथाइलिन ब्लू के साथ ना ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, तो मिथाइलिन ब्लू के साथ ग्लूकोज देते हैं इसमें, तो इसका मतलब ये है, मुझे समझ नहीं आया कि ये ग्लूकोज देते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेट हीमोग्लोबिन जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि कैसे हो जाएगा, या फिर मैं इसको ना देख लूंगी अच्छी तरीके से कहीं और, उसके बाद फिर इसको डिस्कस कर लेंगे कि ये कैसे है इसमें। ठीक है, डिटेल्स इसकी मुझे मिली नहीं है। ओके, और कोई एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? ठीक है, नो क्वेश्चन, सो सी यू टुमारो। कल देखना है क्या, कल हमें करना है PBL। ठीक है, तो कल PBL में है लिपिड मेटाबॉलिज्म का पार्ट 2 जो है ना, उसी पे PBL है। So I just wanted to ask कि do you people have been provided by any faculty any questions regarding this lipid metabolism? किसी को अगर क्वेश्चंस दिए गए हैं तो बता दो, बिकॉज मैम ने कहा था कि उन्हें क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए जाते हैं, आपको वही डिस्कस करना है, आपको अपनी तरफ से क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं। अच्छा, नहीं मिले हैं, ठीक है। अच्छा, ये किसी बच्चे ने, प्रिया ने क्या लिखा है, मैम ड्यूरिंग फैटी एसिड सिंथेसिस आल्सो NADPH आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सैलिक NADPH, तो वहां पे भी, तो फिर आप बताओ NADP क्या लिखा है बच्चे ने, फैटी एसिड सिंथेसिस में NADPH आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड।
एक्चुअली देखो बच्चे, क्या है ना कि अभी ये वाला मिथाइलिन ब्लू नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट वाला ना मेरा भी क्लियर नहीं है। मैंने ये देखा कि उसमें इस टेस्ट में लास्ट में ग्लूकोज भी ऐड करते हैं, तो फिर ना मुझे ये वाला चीज क्लियर नहीं हुआ, बट बुक में इतना ही लिखा हुआ था, तो मैंने कहा कि बताना पढ़ाना तो है ही, तो मैंने बता दी। अब इसके लिए मैं इसको डिटेल्स में कुछ प्रोसेस थोड़ा डिटेल में रहता है, तब मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि कल के लिए वही क्या हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन और ये वाली चीजें जो है वो तो पार्ट 1 में आती है। पार्ट 2 वाली कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल रिलेटेड जितनी क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं बना के लाऊंगी कल, एंड देन वी विल डिस्कस, ठीक है। ओके। ओके प्रिया। ओके अनुष्का, अश्मीत एंड वंशिता, ठीक है। ओके जानवी। हम्म, ये